Welcome to the Mind Your Buffalo podcast. This is your host Ravikant, aka the Buffalo Intellectual, and with us we have a funny man, a very funny man. Ravi Gaikwad is here with us. Ravi, tell us, why are you on this podcast? because because बस शाम ढल रही थी, बढ़िया सनसेट हो रहा था. मैं बोला थोड़ा चलो ये बफेलो भाई ये कोई बात हुई? आप भी हैंग शाम आउट, ढल रही थी तो चलो हैंग आउट पॉडकास्ट पे आ करते हैं. जाओगे? ऐसा होता है क्या? पॉडकास्ट सीरियस बिजनेस है. ऐसे कोई भी पॉडकास्ट दो तो मत लोग आके जस्ट गेट ऑन द थिंग एंड you're a comedian and like so male podcasting, like what are we doing here, guys. मैं तो भाई चिल्ली करने आया था भाई. आपका क्या सीन? मैं तो चिल्ली करने आया हूँ. मैं तो बस No, see, I'm as you can see from the way I'm dressed, I'm 19 years old. I'm just young. I'm experiencing no life. cap and all. Yeah, I'm like color coordinated. I've got like my jam going. I've just passed out of school and I'm just experiencing life. Right. So there are these rumors on the internet that I'm like 38 years old and a professor. That's incorrect. I'm 19 years old. I'm Gen Z. Okay. I have come. And this is the interview where Gen Z catches you and I'm going to be their voice. They don't know it yet, but I am their voice. But jokes aside, my frivolous nonsense aside, for the audiences, I want to kind of give a proper introduction to Ravi. Ravi is obviously one of the leading anti-caste comedians that is out there, and he's part of the Blue Material lineup. And he's you are right, like कुछ ऐसे अंदर का कुछ ऐसा तो नहीं हुआ हो ना अभी भी. हाँ ठीक है. आज की डेट में जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बट छोटे छोटे प्रॉम्प्ट्स ऐसा हेड नोट्स. हाँ हाँ हाँ, वो क्योंकि ये lineups always like great bands, they fall apart, come back, so we don't know when people will be listening to this. As of today it exists and Ravi is very much part of it. But कुछ महीने पहले I was doing live tours for some reason, and I'm not a comedian, and I was going around to different cities and doing a live version of this podcast where I was just telling stories and talking. And I had booked comedy venues because they're cheap, because comedians don't make any money and nobody goes for it, so those things are cheap. So बॉम्बे जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, आपको एक कमरा मिल रहा है where 50 people can be seated, like for very small, like it's cheaper than Oyo. This is something young couples can explore. Instead of going to Oyo, you can book a comedy club and have a whole space to themselves, right? So I was booking those things, but because I was booking comedy clubs, they had this misconception that this was a comedy show and everybody wanted to open the show. And Ravi had also contacted me saying, "Okay, like, bhai, can I open?" And I was embarrassed. Like, I think I messaged you also, like, "You're too big. Why do you want to open for my show and stuff?" But for the audience, I want to say this: city after city, like a lot of these Savarna young comedians would go up, try to open, and they would bomb, because like the audience which comes to listen to the Buffalo Intellectual show is a different audience, they're crazier people, and they have a very different mindset. Except when Ravi came and Ravi was talking, like he had the crowd, he warmed them up, he had great jokes and a great set. And in a way, I thought that was a very, very cool set that you do, and a very, very funny guy. And actually behind humor, like there is a very interesting idea. You also do this thing called Nobo comedy, North Yeah, Bombay. that's my production on the end. Like I do production also. मैं ऐसा shows भी बनाता हूँ, मतलब manage करता हूँ Right, ये सब वो सब. That's like the other right. branch of thing So that I do. he's doing a lot of things, and all around funny guy, great personality. I think you're doing like a major show. So because I'm Gen Z, I'm trying to promote your show also, in that sense. So thank you, Ravi, for coming on the Mind Your Buffalo podcast. Great pleasure to have you. Why don't you tell us a little bit about why did you get into comedy? Like, how did you get into it, and what was the journey like? Okay, so like before pre-engineering तो comedy ऐसा consume type किया ही नहीं था वैसे. तो this अच्छा, lockdown was इंजीनियरिंग किया था क्या आपने? हाँ
engineering is the fertile ground where filmmakers and comedians come from. So like that's the Yeah, it's a that's the launching pad. It's a great launching pad for like यहाँ से सब निकलते हैं. Yeah, that is right. so there. ऐसे So हाथ मत my दिखाओ भाई वो कैमरा में it has it feels lewd. You're like lewd as in? you're Oh, doing वैसे. hand gestures like this. So hand gestures थोड़ा carefully करो. हाँ Okay. नहीं तो हाँ उससे क्या you होता didn't है? get it. It was a pornographic kind of a reference that I was kind of going for, but नहीं, please मेरे को the जानना है क्या dicks all around, exactly. like you're like Oh doing yeah. Oh like वैसे. that. Uh, Clearly, we are not even 10 minutes into it, and we are an R-rated show right now. But go on. You Yeah. were in comedy. No, you were in engineering, and that's obviously Yeah, like this engineering was going on, and then like bro, my also like very classic story of ki engineering में this identity crisis thing happened. कि I was like fuck, miss my caste is this and all yo. उसके पहले तो zero ये मतलब that moment कि जब when it happened, then वो बचपन के सब dots ऐसे connect हुए ऐसे टक 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 oh like having those multiple moments of oh shit oh अच्छा अभी समझ रहा है अभी समझा वैसे वाला. So like this engineering was that only, and then उसके अंदर this lockdown happened, and I was watching because घर पे only, and I kind of like ghosted my college in some sense. Like I like because I was like so done with like college people, so I kind of ghosted them. ऐसा थोड़ा सा ghosting हो गया था, and then वो ghosting में अभी कुछ कॉलेज तो वैसे कुछ चल नहीं रहा है वैसे, बट घर पे तो लग रहा है कि ऑनलाइन लेक्चर्स तो चल रहे हैं तो घर पे बैठा है तो ऑनलाइन लेक्चर चल रहे होंगे, बट ऑनलाइन में भी आई वाज घोस्टिंग देम, तो लाइक ऑफलाइन तो दूर का बात है. सो देन दिस लॉकडाउन में थोड़ा थोड़ा स्टैंड अप देखना चालू किया, एंड देन बहुत ज्यादा ही देखना चालू किया. देन इट वाज लाइक नथिंग, लाइक होल डे आई एम डूइंग लाइक लिटरली नथिंग, जस्ट वाचिंग स्टैंड अप ओनली. सो दैट हैपेंड, एंड देन पोस्ट लॉकडाउन आई स्टार्टेड, एंड देन बस फर्स्ट माइक आई डिड, फर्स्ट this. सेट आई डिड, तो उसके अंदर वन रिजर्वेशन जोक आई हैड. So one only because I was like also like कि I also want to talk about, because मैं सारा lockdown में बैठ के I was watching all these black comics and थोड़ा I was like full getting pumped कि यार bro something कुछ similar only, कुछ similar let's try ऐसा वैसा, because it also felt like कि यार मतलब इन लोग ऐसा मस्त बात कर रहा था, अपन भी ऐसा कुछ like मस्त खुद के बारे में इन लोग बात कर पा रहे, तो थोड़ा वो आइडेंटिटी क्राइसिस में like that was like one ऐसा होप ऐसा कि अरे वाह कितना मस्त चीज है ये, तो परस्यू करना चाहिए इसको. So that happened. तो उसके अंदर one joke I had post mic, this 1-2 comics come to me and they're like यार तू भी cast joke करता है तो you also go and talk to Manal. There's one other comic who also does cast material, तो meet Manal वैसे. So वही एक दो mics में ऐसे मिलना एक mic में randomly मिलना हुआ. Like that time I used to do a shorter spot. ऐसा स्टार्टिंग में स्टार्ट करते तो 3 मिनट 5 मिनट का स्पॉट होता है, देन यू गो टू 8 मिनट का, वैसे बहुत सारे स्टैंड अप सीन में भाई बहुत सारे ऐसे सेट मैट्रिक्स है जिनसे आपको बहुत प्रॉब्लम है, मुझे मालूम है. वो अपन बट है वो थोड़े थोड़े अपने सेट मैट्रिक्स कुछ ऐसे कि 3 करने का 5 करने का 8 करने का 10 करने का ऐसा. एंड देन आई मेट वन ऑफ द शो पे एक ओपन माइक पे आई मेट मनाल, तो he was doing a longer spot, I was doing a open mic 5 minutes वाला spot, he was doing a 8 या 10 वाला वैसे. तो जो ये ट्विटर पे उसका जो डला हुआ है मनाल का वो वीडियो, वो तभी मैं रूम में ही था, तभी सेम ही लाइनअप पे था. आई वाज डूइंग अ शॉर्टर स्पॉट, ही वाज डूइंग अ स्पेशल लॉन्गर स्पॉट, तो वही वाला उसने डाला था. तो या दैट एंड देन मतलब थोड़े फ्रेंड्स बने हम लोग, एंड देन थोड़ा एक वो था एक कनेक्ट, एक थोड़ा एक मालूम नहीं एक हवे में कनेक्ट था कि दिस मतलब थोड़ा उसका भी थोड़ा सा कॉमेडी जाता है ब्लू की तरफ, द ऑब्सीन ब्लू की तरफ, एंड मेरा भी, एंड एट द सेम टाइम एंटी का थोड़ा ऐसे ये तो थे कि थोड़े अपन अपने बढ़िया आइडेंटिटी के आसपास जोक कर रहे, तो वो हाँ तो वो एक कनेक्ट तो था ये कि आइडेंटिटी के आसपास जोक कर रहे, वो एक कनेक्ट था. एंड दूसरा वाज कि यार मस्त थोड़ी गंदी बातें भी करते हैं हम थोड़े वैसा वाला वो भी कनेक्ट था कि यार मस्त एकदम, तो एक वो दो वाइब थी. एंड बस ऐसी बातें चल रही थी डेफ जैम की कि यूएस में डेफ कॉमेडी जैम हुआ करता था एक पॉइंट पे, वो सब बातें चल रही थी. और देन वही हुआ कि कुछ ऐसा अपन भी सिमिलर ट्राई करते हैं. अभी लाइक किसी एक आदमी को शो डालना रहता है तो इट्स 90 मिनट्स ऑफ मटेरियल, 60 to 90 वैसा कि, तो उसको कॉमिक बोलता है कि ओके नाउ दिस इज अ शो. बट उस टाइम पे मनाल के पास भी कुछ 20 मिनट था,
देयर वाज मयूर आल्सो, उसके पास भी ऐसा आर नहीं था, उसके पास भी 20 30 मिनट 40 मिनट्स टाइप था. तो नो वन हैड लाइक आर मटेरियल, सो इट मेड सेंस फॉर अस टू डू अ लाइनअप ओनली टुगेदर, बिकॉज किसी के पास भी 90 मिनट्स है ही नहीं. तो हम लाइनअप डाल दिया एंड देन नाम रख दिया ब्लू मटेरियल, एंड देन फर्स्ट एडिशन बैंड्रा में किया, बस तब से किए जा रहे. तो अभी हो गया, अभी एट दिस पॉइंट 4 टूर हो गए वैसे. तो वही घूम लिया है. तो वी स्टार्टेड, तो वो जर्नी में भी बहुत सारे नए नए कॉमिक्स भी मिले, वैसा भी हुआ. तो एट दिस पॉइंट एवरी सिटी में वी हैव ऐसे बढ़िया लोकल कॉमिक्स, एंड एक हमारा पूरा लाइनअप घूमता है वैसे. I think your अभी जो your shows coming up, it has Radhe in it. Yeah, Radhe it's a was Delhi comic. one of the, Delhi comic. हाँ One of the वो opening दिल्ली में, at your Delhi show, right? Yeah, he told me. yeah, He yeah, told me. Yes, yes. yeah. बताया वो मैंने. ऐसे I don't know if I should say this ऐसे in a podcast. मैं ऐसे बैकफोर में गया ऐसे शो के पहले, तो ये लोग एकदम फुल ऐसे अपना कॉमिक मेरे को फुल एकदम भूल दिए, कोई बात नहीं कर रहा, अपना फूफू रहे हैं और and I was like, okay, dude, like, you know, I am here, like, whatever, I'll just come, say my piece and go away. बाद में we were all talking and like he was like, yeah, I am also in it, and I was like, अरे भाई तो इतना attitude क्यों दे रहा था मेरे को पहले, you know? But I feel that it's very interesting you're saying all of this because I am not from the world of comedy, nor do I want to get into the world of comedy. But there is an overlap in the sense I speak to the live audience in comedy venues, right? Right. और मेरे को बहुत odd लगा, ईमानदारी से बोलो, and I would love to talk to you about this also, like especially हमारा जो वो last set था, I forget the venue, वो J Spot ही था ना, वो जो जू में जो right. And I went in there for the audiences who are not like, who don't know or who've not been to venues like this. Like वो अंदर गया ऐसे फुल दीवार पे ऐसे सब कॉमेडियन लोग का फोटो लगाया हुआ है, एंड वहां पर like this girl वो ऐसे दीवार पे कुछ बोर्ड पे लिख रही है, you know, who are the next acts, and like एक छोटा सा वेटिंग रूम बनाया हुआ है, ऐसे नेट लूट लगाया हुआ है, बहुत ग्रंज लुक फील टाइप, you know. एंड मेरे को ये चीजें इतनी like by training I'm into culture studies, so I look at symbolism a lot, right? और मैं फील्ड वर्कर हूँ, मेरे को ऐसे मेरे को ये बहुत आउट ऑफ सिंक लगता है, like this idea, like who is this for? I think we were hanging out and like this girl was just I asked, why are you writing this? किसके लिए लिख रही हो ये, you know, who's gonna come see this? And I think she was also confused and she was like, I don't know, it's my job. तो मेरा जो वाइब था, मुझे जो ऐसा लगा कि a lot of comedy behind the scenes is like cosplaying comedy. Like इन्होंने कहीं देखा है या कहीं सुना है कि ऐसे होता है विदेश में या कहीं पर, कैसे एक लाइनअप होगा, ऐसा एक होगा. Every venue I went to, people asked me this exact question, how many minutes do you do? एंड आई वाज लाइक ये कैसा सवाल है भाई, मतलब मैंने 2 घंटे के लिए बुक किया है, ठीक है, 10 मिनट अपन लेट शुरू करते हैं, 10 मिनट ओपनिंग एक्ट बोलता है, कभी 12 हो गया, कभी 15 हो गया, जो भी है. I'll get on stage, you tell me 10 minutes before I get off, I'll get off it, I'll close my thing. Like ये जो आइडिया है कि it has to be 75 minutes, 60 minutes, like everybody is so precise, ऐसे मेरे को वो समझ में नहीं आता कि आप इतनी बातें कर रहे हो and there's such a performativity around it. ऑडियंस आपसे भरी नहीं जा रही, राइट? लाइक 50 लोग 500 लोग नहीं हो रहे हैं. सो लाइक coming to the question I wanted to get for you as somebody who's just making identity jokes, who's trying to bring, you know, Ambedkarite flavor into the comedy, into that space, into those spaces. Like mere set mein, like there were some of these students who have never been to a comedy show, right? Like I've taught them before at Nalanda or wherever. तो वो लोग मेरे को देखने आए हैं, right? और before the show and after the show भी जब मैं उनसे बात कर रहा था, that's a venue which kind of, you know, मतलब it's passively hostile. मतलब ऐसी जगहों में हम नहीं जाते क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा elite और something about that thing, right, which makes it cool to a certain Savarna audience, makes it a little uncomfortable to some of our audience. And you're going in as
as yourself into those spaces. So what was your journey like? Do you feel like yeah, do you feel like completely like yourself, या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये लोग disconnected है, इन्हें कोई idea भी नहीं है कि what's really going on, things of that nature? What do you feel like? How do you react to that space and that culture in that way? तो स्टार्ट में तो लाइक कभी वैसे लाइक दिमाग में कभी था, लाइक कॉमेडी खुद स्टार्ट करने से पहले कभी दिमाग में नहीं था कि एक स्पेस ब्लू मटेरियल ऐसा कभी बनने वाला है। तो वो तो कभी डे वन पे कभी इमेजिन नहीं किया था, वो तो इन द प्रोसेस बन गया। तो स्टार्टिंग में भी ऐसा इतना क्लैरिटी था कि अपने आइडेंटिटी के आसपास तो बोलना ही है, बट एट द सेम टाइम ये भी था कि मतलब लाइक आई यूज्ड टू कंज्यूम ऐसे थोड़े मतलब ऐसे बताओ तो ऐसे बिट्स एंड कुछ ऐसे एंटी कास्ट आर्ट बोल सकते हैं उसको, ऐसा एंटी कास्ट आर्ट बोल सकते हैं। एंड आई कुड एक ऐसा एक उसमें ये तो दिख रहा था मुझे कि वो एक लूप में ही जाके खत्म हो रहा था, कि बस एक सर्कल के अंदर ही घूम रहा है एंड वो खत्म हो रहा, वो बाहर कुछ उसके बाहर नहीं जा रहा था वो सर्कल के। सो एक वो तो था कि लाइक कीपिंग माय आइडेंटिटी इन द फोरफ्रंट, एट द सेम टाइम आसपास के 10 लोगों को वो एलियनेटिंग ना लगे, एलियनेटिंग बेसिकली कि क्योंकि वो रहेगा मेरे आइडेंटिटी के आसपास, बट देन वो एलियनेटिंग ना लगे सामने वाले को, 10 लोगों को। तो एक वो था, तो एक ऐसा 6 महीना 1 साल के बाद एक काइंड ऑफ एक पैरामीटर ही मैंने सेट कर लिया था कि एक जोक को मैं वो जोक लॉक तभी होगा इफ दैट वर्क्स इन अ नॉन ब्लू मटेरियल सेटिंग आल्सो एंड एट द सेम टाइम ब्लू मटेरियल सेटिंग आल्सो। इट शुड वर्क सिमिलरली इन बोथ द सेटिंग। ऐसा नहीं हो सकता कि ओके ये वाला जोक ऐसा ब्लू मटेरियल के रूम में ये फटेगा and then this normal room में शायद से ना इतना फटे, मतलब that can't be। तो what do you think, what is the Savarna reaction to, let's say, what you're calling blue jokes, I'm calling like anti-caste jokes, right? Like, so what is the Savarna reaction to it? Like, क्या anxiety है, pushback है, guilt है? You do this day in and day out, right? like भाई जस्ट अभी ये वाला एग्जांपल, ये like the word सवरना, like मेरे आसपास के 20 लोगों को दोस्तों को वो वर्ड भी नहीं मालूम है, but they are living हाँ, that वो life। तो अपन यूज करते हैं because you don't want to say upper caste। अपर कास्ट सुना होगा, सवर्ण हाँ नहीं सुना होगा, वो मैं वही हाँ। तो उन लोग तो अपर कास्ट, और वो भी अपर कास्ट भी एकदम ऐसा उसमें प्रॉब्लम ही है, क्योंकि अपर तुम लोग बोल रहे हो मतलब कोई तो लोअर है, तो अपर वाले से तो वो वाले पार्ट से तो प्रॉब्लम ही है। तो बट वो सवरना तो इन लोगों को मालूम नहीं है वर्ड, वो तो एक वो भी है कि वही वाला पार्ट की अपन बनाने जा ऐसा आर्ट, बट देन वो एलियनेटिंग हो जाता है फॉर द ऐसा मेजॉरिटी। तो भाई उनको समझ ही नहीं रहा है, तो देन कुछ यही मैं एक इसमें थोड़ा पुशबैक करूंगा, क्योंकि I have seen some of these comedians, वो आके स्टेज पे बोल रहा है मैं ब्राह्मण कॉमेडियन हूँ, राइट? वो स्टेज पे आके बोल रहा है। अब सवरना तो is a umbrella word. Honestly speaking, I'll tell you know why I use सवरना is because अगर मैं दिन भर ब्राह्मण बोलने लग जाऊं, कायस्थ बोलने लग जाऊं, तो FIR हो जाएंगे यार 4-5, right? So you have to be careful how you use Brahminism, you don't say ब्राह्मण लोग ऐसे हैं, right? सवरना बोलो तो थोड़ा ओपन है। अब बनिया को मैं बनिया बोलता हूँ, I'll say like look at बनियास like this। वो लोग ऐसे आपको अटैक नहीं करेगा, वो सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन को खरीद लेगा, वो अलग I have seen upper caste Savarna comedians talk very openly, हम बनियों में ऐसा होता है, there's a बनिया comedian, वो बोलता ही है आके हम बनिया ऐसे होते हैं and we are like that। एक ब्राह्मण comedian है, वो भी आके बोलता है हम ब्राह्मणों में ऐसा होता है। तो जब वो ऐसे बोल रहा है अपने आइडेंटिटी के ऊपर, तो वो जो ऑडियंस में ब्राह्मण है, कायस्थ है, उसको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन जब अपन जाके स्टेज पे बोल रहे हैं अबाउट कास्ट और लाइक फ्रॉम अ प्रिविलेज पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक हम उनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, तो देयर इज अ स्पेस फॉर फ्रिक्शन, राइट? So you're also pointing it out, like कि वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने ऑडियंस पे चल रहा है, उन पे नहीं चल रहा है। तो I'm sure it's not just the audience, it's also the organizing setup। अब कास्ट एंड स्टैंड अप कॉमेडी के ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है, बट यूजुअली इट इज अबाउट ओ इस कॉमेडियन ने मायावती के ऊपर एक जोक मारा था। That's that। I'm just talking about in these subtle spaces। Like, do you get told that अच्छा तुम तो
कास्ट पे जोक मर रहा है, तुम्हारा ऑडियंस पक्का है, you have a Yeah, thing, or yeah. Like post this blue material only. Like every right. green room I go, every comic किधर भी spot करने चले गए, तो ये तो चलता ही रहता है कि अरे now you guys also have your thing. अच्छा, तुमने नीश निकाल लिया। हाँ, ये तो उन्होंने नीश निकाल दिया, बट वही तो है ना, नीश निकालना, नीश थोड़ी निकालना है मेन स्ट्रीम में, मतलब दैट इज द गोल ना, मेन स्ट्रीम वाला नीश में थोड़ी फंसे रहना है। मेन स्ट्रीम में आएंगे देन वहां पे कुछ एक पावर होती है, चेंज लाइक कुछ वो एक पावर सिचुएशन में अपन एक रहते हैं एक पोजीशन में, तो एक वो तो है। एंड दिस वाज टॉकिंग अबाउट क्या अपन बात चल रहा था, शिट माय थॉट ओनली गोस समवेयर एल्स। अरे ठीक है ना, ऐसे हाँ, this only अपना like this material wise only, तो एक वो तो दिखता है कि मतलब भेजे में तो घुसना चाहिए ना अभी उनके, वो पेनिट्रेशन, वो अभी कंडीशनिंग ही इतनी हेवी है, तो भाई अभी मैं उनको बोलूंगा सवरना देन ऐसा वैसा तो नहीं घुसेगा भाई वो सब भेजे में, वो तो एक वो भी है कि मतलब अपनी ऑडियंस को समझो स्मार्ट, बट एट द सेम टाइम वो भी रहता है कि शायद But is it an audience at all? This is the debate we were having in the green room. कि मैं तो इसको ऑडियंस मानता ही नहीं हूँ। I don't think this is an audience. This is like आप वीकेंड में 50 लोग 100 लोग भर रहे हो बॉम्बे जैसे शहर में, तो ये ऑडियंस नहीं है, ये चिल्लर है। You get what I'm saying? कंपैरेटिव में तो चिल्लर है। Bombay is, I'm guessing, the biggest venue for stand-up in India, or biggest city for stand-up in India, and I'm guessing 4-5 बड़े venues हैं, और 4-5 बड़े venues मिला के I'm guessing on a good weekend you're pulling in about सब भी अगर हाउसफुल है तो 800-900 लोग वीकेंड आ रहे हैं basically across 4 or 5 venues. राइट, बॉम्बे की पॉपुलेशन कितनी, 20 करोड़ पॉपुलेशन है, राइट, तो है ना, तो अब स्टार्टअप इज ऑलवेज सीन एज कॉमेडी इज ऑलवेज सीन एज अ स्टार्टअप थिंग, तो स्टार्टअप तो हो गया ना, लाइक एआई भी को भी अभी टेक ऑफ लेगा, कब लेगा? सो माय फील ऑलवेज इज दैट दीस थिंग्स विल नेवर टेक ऑफ, इट विल ऑलवेज रिमेन। नहीं भाई, ये टेक ऑफ का ना इसके ऊपर मैं एक बार थॉट दिया था भाई, तो ना इसके ऊपर ये भी था कि भाई अभी तक वो इतना क्या बोलते हैं उसके ऊपर, वो इतना पेनिट्रेशन ही अभी तक इतना हुआ नहीं है ना ये टेक ऑफ, मतलब जैसे कि अभी हम लोग भी जब ब्लू मटेरियल जब हम लोग ने जब स्टार्ट किया था, तो एक उसका एक ना बहुत ही एक फर्स्ट वेव ना बहुत ही क्रेजी रिस्पांस आया था, द फर्स्ट वेव, तो वो रिस्पांस वाज ऐसा एक वो एविडेंस था कि एक वॉइड ऑलरेडी था, मतलब लोग भी कंटाल चुके थे वो एक टाइप वाला सुन के, तो वॉइड ऑलरेडी था और हम लोग ने वो बस आके वो वॉइड फिल किया बस, तो एक वॉइड ऑलरेडी था, बहुत टाइम से था, तो एक अभी ऑल दिस अभी हम लोग भी ब्लू मटेरियल चलाते हैं, एक क्यूरेटेड शो भी चलता है, तो ऐसे बहुत सारे शोज बन रहे हैं, एंड जिसकी वजह से ना एक वो लेवल की पेनिट्रेशन हो रही है जो पहले वाला वो बैच ऑफ शायद से कॉमिक्स नहीं कर पा रहा था वो, तो अभी वो एक वो लेवल की पेनिट्रेशन तो हो रही है, तो ये अभी ऐसा वही मैं बोल रहा हूँ, एंड टेक ऑफ शायद से होगा। the way I see this things is that what you guys did with Blue Material was an innovation on comedy. I see it as exactly, it was a disruption. भाई इनोवेशन था ही नहीं भाई, वो तो एक बस एक वॉइड था, बस हमने आगे फील किया, right. क्योंकि लोग भी कंटाल चुका है वो एक टाइप का ही सुन के, ऑडियंस भी एक पॉइंट के बाद कंटाल जाता है वो, मतलब इंटरनेट पे चल रही है वीडियो 40 50 वीडियो, बट ऑडियंस भी अभी क्या हो गया भाई, कुछ दूसरा कुछ बताओ, हो गई वो बातें, राइट। नो, सो वही मैं बोल रहा हूँ कि लाइक अ लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ ये जो जिसे स्टैंड अप बोल के क्यूरेट किया जाता है, ये बहुत ही स्मॉल बैंड ऑफ पीपल डूइंग अ वेरी स्मॉल बैंड ऑफ ह्यूमर, राइट, तो वो एंड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये भाई ये ऐसा ही रहेगा, तुम समझ रहे हो, तुम ऐसे ही रहेगा, हाँ, तुम अगर ज्यादा बड़ा बन जाओगे ना, फिर तुमको अदर कर दिया जाएगा, जैसे अरे ये तो वो कपिल शर्मा टाइप कॉमेडी है, ये तो ब्लू मटेरियल, you get what I'm saying, like this idea that there is a one pure art form and this is like some massified version of it, ये actually in a system where cultural capital is owned like that, ये हमेशा अदर कर देगा, जहां आपका स्केल बड़ा होगा। अभी that movie came out चमकीला, right, like the artist himself चमकीला, वो जब जिंदा था उसको अदर कर दिया ना, अभी उसकी फिल्म इम्तियाज अली बना रहा है,
तो चर्चा हो रही है कि ये वल्गर था कि कला थी, क्या था। अब हम चर्चा कर रहे हैं जब इम्तियाज अली उससे ऊपर फिल्म बनाता है, राइट? तो आई ऑलवेज फील दैट लाइक इन सच स्पेसेस, लाइक मेरा थोड़ा एक्सट्रीम पोजीशन है इन चीजों पे, कि वो मुझे हॉस्टाइल टेरिटरी लगती है, right? So I'm always very keen to hear from you on the other side, like because you're part of that industry in a way. And a lot of the comics, well-meaning people, like by all yardsticks, all the Savarna comics, upper caste comics that I have at least met or interacted, genuinely मुझे ठीक ठाक बंदे लगते हैं. मतलब they're decent men and women who are trying to kind of be funny and whatever, but not mean or vicious as people. At least that's my very superficial experience. But as a structure, मेरे को वो थोड़ा hostile लगता है. Like वो venue, the system, the kind of jokes, the kind of और जो मैं हम बात कर, this art of comedy. लाइक वो ये इस टाइप का, अरे ये जो ऑडियंस है इसको कॉमेडी समझता नहीं है, तो हम एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ आर्ट ऑफ कॉमेडी लेके आएंगे. चमकीला वाज आल्सो डूइंग कॉमेडी ओनली. नहीं बोल रहे थे कल्ट वाला वाइब, वो कल्ट वाला वाइब तो है ही, वो कल्ट वाला वाइब. हाँ, कि मतलब जो बाहर के हैं उनको तो एलियनेटिंग फील कराना ही कराना है, अगर नहीं करेंगे तो वही वैसा वाला कल्ट वाला ही, वो तो है इमोशन, वो तो है ही. हाँ, That's very interesting. So tell me a little bit about this show you're planning to do. It's supposed to be a big show, and what is it about? Yeah, it's our lineup coming together, the whole lineup coming together. Kind of बोल सकते हैं. Avengers Assemble. It's the Avengers Assemble. Yes, it's the Avengers Assemble. So yeah, it's finally the whole Avenger Assemble lineup is gonna happen on 28th in Mumbai above the Habitat. So वही यही प्लान था कि मतलब हो गए अभी एट दिस पॉइंट 2.5 साल टाइप्स हो गए, 2.5-3 साल टाइप्स हो गए. तो अभी ऐसा था कि एक, और ऊपर से जयंती मंथ भी था, तो हमने बोला एक बढ़िया, एक मंथ एंड में बढ़िया सा एक वैसा प्लान है. एंड एक दूसरा पाइपलाइन में प्लान है रैप कॉमेडी, थोड़ा रैप कॉमेडी शोज हम लोग ये कर रहे हैं अभी, मई में कर रहे हैं प्लान. सो व्हाट इज अ रैप कॉमेडी? रैप कॉमेडी इज रैपर्स एंड कॉमिक्स कमिंग टुगेदर, and it's a combined show वैसे वाला. तो रैपर्स भी होंगे, कॉमिक्स भी होंगे. या फुल सीड्स पे. या ये जो 28 वाला शो है, ये हैबिटेट वो खार वाला है ना? यस खार वाला. ये बदमाश लोग मेरा रिप्लाई नहीं किए. क्या बात कर रहे हो भाई, मेरे को बोल दिए होते भाई. मैं कुछ, अरे मैं बता रहा हूँ, बॉम्बे में मेरे को शो नहीं मिल रहा था. व्हेन आई वाज ट्राइंग टू बुक वेन्यूज, मैं जाके इनको डीएम कर रहा था कि देखो भाई ये है शो है, मैं पैसा दे रहा हूँ. रिप्लाई भी नहीं किए. ये जो जे स्पॉट भी मिला मेरे को, बिकॉज वो अपना सिद्धांत दुधरेजा है ना, वो आई थिंक ही फॉलोज मी ऑन इंस्टा. तो मैंने ऐसे एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर स्टोरी डाल दिया था कि ये वेन्यू लोग मेरे को दे नहीं रहे हैं. तो ही कॉन्टैक्ट मी, या इज लाइक भाई आई गेट. तो उसके थ्रू मेरे को मिला, राइट? तो मैंने उसको बोला कि he was sitting in the back while आपके शो के टाइम. या तो वो मेरे को बोल रहा था कि लाइक हाँ. तो मैं उसको बोला कि भाई अब सिफारिश मोड से मिल रहा है मेरे को ये, अदरवाइज मिलता नहीं है. तो हैबिटेट खार मतलब वो to the audience it's a legitimate space. मेरे को नहीं जाने दिया उन लोग वहां पर. तो it is a legitimate space. Our man is breaking into a big shot. क्योंकि उनका वैसा लोगो है ना, ऐसे H ऐसे पीछे में, ऐसे बहुत प्रोफेशनल लगता है ऐसे देख के. तो मेरे दिमाग में था ऐसे इसके सामने ऐसे माइक लेके मैं फोटो खींचूंगा, कितना अच्छा लगेगा. सालों ने रिप्लाई भी नहीं दिया मेरे को ऐसे उधर में ऐसे. तो so I'm very happy that you're kind of going there and this is coming together. And like, are you going to be recording this show, or like can we see a Netflix special or something of that sort at some point? At this point the whole Blue Material is planning collectively to put out some content out there, because हम अभी at this point हो गया 2-2.5 साल हो गया, बट कुछ हमने कंटेंट कुछ बाहर अभी तक डाला नहीं है. बट लाइक दैट्स द एकदम इवेंचुअल नेक्स्ट प्लान कि अभी मटेरियल डाल देंगे, बिकॉज अभी सब लोग कॉन्फिडेंट भी अपने मटेरियल को लेके. स्टार्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं अपन ये वो, बट एट दिस पॉइंट सब लोग कॉन्फिडेंट भी अपने मटेरियल को लेके. Plus, once if a lineup goes up on, let's say, a Netflix or an Amazon, which they should take also, ideally speaking, because it's a lineup, it's proven, you've done city tours and all, it sets all of you up, like because it establishes like a new range of comics, which is out there,
and I hope like you know, but of course ये सब कंपनी में जो कंटेंट मैनेजर ब्रांड मैनेजर बैठे हैं वो भी उल्लू के पट्टे हैं. That's the other thing, you know. like भाई अभी लास्ट 2 साल से आई एम ट्राइंग टू गेट ब्रांड्स ऑन बोर्ड फॉर ब्लू मटेरियल. मतलब मैं मैनेज भी करता हूँ ब्लू मटेरियल. मतलब मैं आर्टिस्ट तो हूँ ब्लू मटेरियल के साथ, बट मैनेज भी करता हूँ. हाँ, तो ऑल दिस हम लोग जो भी गिग्स विग्स करते हैं, मतलब एट दिस अभी वी हैव अ न्यू मैनेजर. दैट्स द न्यू गुड न्यूज. वी हैव अ न्यू मैनेजर. सो पैसे दे रहे हो उसके? आई एम जस्ट आर्टिस्ट नाउ. शेयर का अपना शेयर वैसा. तो So what's the experience with brands? Are they coming and so brands के साथ भाई वही सीन है. The moment they search blue material, Google करते हैं तो direct caste ये सब आ जाता है, दलित आ जाता है. तो then ये सब तो उनके दिमाग में वो 10-12 ट्रिगर वर्ड्स है, तो उन लोग डायरेक्टली ना बोल देता है. तो ये 2-2.5 साल से तो बस इसके अंदर ही अभी तक ला नहीं पाया. बट अभी न्यू पर्सन वी हैव वर्किंग विद अस. तो हम लोग को ये रैप कॉमेडी भी करके वी आर ट्राइंग टू गेट फाइनली अ ब्रांड ऑन बोर्ड. बिकॉज हम लोग को फिगर आउट हुआ 2-2.5 साल में कि कॉमेडी सिर्फ ये ब्लू मटेरियल कॉमेडी को नहीं मिल रहा है ब्रांड्स. तो मे बी लेट्स डू अ कोलैबोरेशन एंड देन एक्सपेक्ट अ ब्रांड ऑन बोर्ड. तो अभी वही वो सिर्फ ब्रांड को लाने के लिए. I used to work in advertising like after my MBA before I went for my PhD. तो Ogilvy बोल के there is a very big company in advertising. It's the, I think the number one agency in the world or whatever. It's whatever. So India का जो branch है, इंडिया में सारे ब्रांड if you notice like you know वो दिवाली पे ब्रांड कैंपेन होता है. जितना भी FMCG गुड्स है, खाने का पीने का साबुन सब का गाड़ी वाड़ी, मतलब सारे ब्रांड्स का उसी में हो रहा है और वो क्लटर हो जाता है. तो एवरी ईयर दीज पीपल आर ट्राइंग टू क्रिएट लाइक क्लटर ब्रेकिंग एड बिकॉज दिवाली में सबका कैंपेन आ रहा है. तो आईपीएल में करेंगे, आईपीएल में सबका कैंपेन आ रहा है, राइट? सो तब तो आईपीएल नहीं था, बट आई बैक देन आई सेड लाइक यू नो व्हाई डोंट वी डू समथिंग ऑन जयंती, राइट? बॉम्बे जैसे शहर में लाखों लोग आ रहे हैं, राइट? कोई ब्रांड इज नॉट टॉकिंग टू देम, राइट? आप अगर पार्ले जी हो, आप कैडबेरीज हो, कैडबेरीज अपना क्लाइंट हुआ करता था, कैडबेरीज हो, 5 रुपए का डेयरी मिल्क मिलता था उस टाइम में. अच्छा 5 रुपए का डेयरी मिल्क यू कैन एडवर्टाइज, नो व्हाट इज दिस, व्हाई आर यू नॉट स्पीकिंग? बट वो है कि सिंस आई हैव एन एमबीए एंड आई हैव बीन टीचिंग बिजनेस स्टूडेंट्स आल्सो, वो एक अलग ही इकोसिस्टम है. लाइक यू राइटली सेड, उनका ट्रिगर वर्ड है. अब वो समझेगा ही नहीं उसको कि इसमें एक्चुअली देयर इज अ पोटेंशियल. You know what you did in the world of comedy by bringing in this kind of a conversation, ब्रांड को भी तो उसका बेनिफिट मिलेगा ना. ब्रांड नहीं करेगा वो चीज. ब्रांड को एक खाली यू नो हम इंडिपेंडेंस डे सेल करेगा, आईपीएल सेल करेगा, जयंती वी विल नॉट you know kind of get into. So this is a very big problem. This is why we need more of our with this rap comedy wala plan, the core idea of that rap comedy wala plan is to take the Jayanti experience to every city. And बस एक इवनिंग वो एक होता था ना, वो एक द क्लासिक जयंती वाला की चौराहे पे 4 स्पीकर लगे हुए हैं, प्रॉपर पूरा चौराहा नाचता है, लाइक वो प्रॉपर एक्सपीरियंस, लाइक वो ही है कोर एकदम उसका साथ आइडिया टू टेक दैट एक्सपीरियंस एंड टूर विद दैट एक्सपीरियंस. या वो ब्रांड मैनेजर वो नहीं समझेगा. वो पता है क्या बोलेगा? नो, आवर ब्रांड इंटेग्रिटी इज गोना गेट कॉम्प्रोमाइज्ड, you know, where is the experience? वो मॉल के अंदर ही लेके जाएगा तुमको, एसी में, एट्रियम में वगैरह. No, it's a structural lack of imagination. And मैं हमेशा ऐसे जोक करता हूँ कि in India we don't even know how to do capitalism properly. These people are leaving money on the table by not engaging with, you know, artists like yourselves or festivals like Jayanti and things like that. ये लोग पैसा छोड़ रहे हैं टेबल पे. They don't understand the scope of what this can be, and sticking to a few of those areas. But it's very interesting. Like I also thought, like you know, since you're here, we'll react to some fun news things. Have you seen Venkatesh Prasad? पहले वो क्रिकेट देखते हो? हाँ, क्रिकेट देखते. वेंकटेश प्रसाद याद है आपको? वेंकटेश प्रसाद इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ द शो. मैं उसके ऊपर एक पूरा एपिसोड किया था, द एग्जिस्टेंशियल हॉरर ऑफ वाचिंग वेंकटेश प्रसाद. लाइक उसके करियर का एक ही हाईलाइट था कि आमिर सोहेल उसको बोल के मार रहा था बाउंड्री इन द वर्ल्ड कप मैच, और फिर बैट दिखा के मार रहा था. एंड लकीली फॉर दिस गाय ही गॉट हिम आउट.
If you go back and see that delivery, it's a length ball off stump के ऊपर में. How Amir Sohail missed it, I have no idea. He would have whacked it. I think उसने बोला था मैं उधर मारूंगा. मालूम उसको बोल के बोला था कि मैं इधर ही मारूंगा. हाँ, अगर वो डायरेक्शन में नहीं, he would have whacked it on anywhere in the ground. एंड अंकल इतना खुश हुए थे उस दिन बोल्ड करके, यस यस एकदम चिल्ला रहा था वो अंकल. उसका लाइफ का वो है. अब वो अंकल ट्विटर को अपने व्हाट्सएप ग्रुप की तरह चलाता है. ठीक है. आई डोंट नो इफ यू हैव सीन हिज लेटेस्ट थिंग. आई विल मे बी पुट द लिंक इन द थिंग. आई थिंक आई सेंट यू द ट्वीट. देखा क्या वो ट्वीट? वो अंकल देखा उसका वो एसआरएच वाला, ही इज लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वाला उसका. ही इज गिविंग आईपीएल एग्जांपल. तो वो बोल रहा है कि ऐसे आईपीएल में इफ यू टेक 4 पॉइंट फ्रॉम राजस्थान रॉयल एंड केकेआर and redistribute it to bottom teams so they can make playoff. Like he's using that example. भाई तू है क्या? तेरा यहाँ पर वीडियो नहीं दिख रहा है. यस मैं यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं उसको वो ट्वीट देखने चले गया. आजा. So he's basically saying that social justice and redistribution is like IPL में हम top teams का point नीचे वाला teams को देगा तो कैसा लगेगा. And very interestingly उसने hashtag डाला है redistribution. So as a comic, how do you feel about this pun? कि उसे redistribution नहीं बोला, समझो वो dust बोल रहा है, distribution नहीं बोला. देखा कितना like so do you feel that your comedy career is in threat because of the comic genius of Venkatesh Prasad? भाई देखो भाई, मेरा अंकल लोग के साथ ना एक ही मेरा थॉट है कि देखो ये बुड्ढा अंकल लोग अभी मर जाएगा. अभी थोड़ा सा इन लोग का जितना जैसा भी जा रहा है ना, इन लोग थोड़ा अभी कट लेगा. इन लोग कटने के बाद देन आई फील it's a better world to be थोड़ा सा in. No, you're very hopeful because तुम्हें भूल रहे हो कि जो आज के युवा हैं, आज के जो नौजवान हैं, वो कल के अंकल बनेंगे. तो हम ऑलरेडी एक जनरेशन अंकल तैयार कर रहे हैं. तुम्हें नहीं लग रहा है कि जो लोग आज बोल रहा है कि आर्ट ऑफ कॉमेडी, like people just go and make Tinder jokes or something like that, that's not art of comedy. कल को वो अंकल बनेगा, तुमको नहीं लग रहा है? तुम ऐसे किस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो कि अंकल भी आएगा उधर? शायद उसके साथ मैं डील कर पाऊंगा. मेरे को ऐसा बस वो एक है कि शायद अभी वेंकी भाई तो अभी वो तो यही भाई जो व्हाट्सएप ग्रुप लेवल वाला बिचिंग कर रहे हैं उन लोग ट्विटर पे. अभी वो अंकल लोग के साथ तो नहीं होने वाला अपना कुछ, ना ट्यूनिंग होगा ना कुछ एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होने वाले. ऐसे कुछ उसने बोल बाल दिया था तो लोगों ने उसको थोड़ा ट्विटर पे खींचा था. तो उसने 10 दिन बाद ऐसे कुछ आरती वारती करते हुए अपना एक वीडियो डाल दिया था. तो मैं ऐसे बोलने वाला था कि यार इसको मत डांटो ट्विटर पे, फिर से इसको आरती करनी पड़ जाएगी, फिर से कोई वीडियो आ जाएगा इसका ऐसे गाते हुए, कुछ ऐसे शर्ट वर्ट खोल के ऐसे घंटी मारता हुआ, in that sense, like that's his saying, like don't mess with me, I'm a religious guy. So he's an interesting character, our Venkatesh Prasad, but we are forever in debt to him कि वो एक मस्त बॉल डाला था वर्ल्ड कप के मैच में और आमिर सोहेल को उसने आउट किया था. आमिर सोहेल इरिटेटिंग लगता था एक्चुअली पाकिस्तान टीम में उस एरा में. मतलब आई थिंक आमिर सोहेल वाज एन इरिटेटिंग प्रेजेंस. सो लाइक ठीक है, क्या बोले अभी उसको. बट लाइक तुम्हें, do you read the news? Are you following the election? Like Maharashtra is like in a very interesting space. What do you feel? भाई मैं इतना न्यूज़ पढ़ता नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ भाई, थोड़ा यार. हाँ, कॉमेडियन हो क्यों न्यूज़ पढ़ोगे, है ना? मतलब like why get into that? अब मैं अपने टीचर मोड में आ रहा हूँ वैसे, in that sense. But you're through and through Mumbai का? Yes, born यहाँ पे, brought up यहाँ पे, सब everything यहाँ पे. So how do you feel about like Mumbai no longer being a city, now being a dump? Like मेरे को बहुत मजा आता है ऐसे मुंबई कर लोग को उंगली करने में, ऐसे उनको बोलने का. कैसा लगता है तुम्हारा शहर अभी शहर नहीं रहा? Bro, I've noticed, I've thought about this, bro. This is like a very toxic relationship only. मैं ना पहाड़ में था, मैं टूर पे भी था, तो दिल्ली घूम रहा हूँ, बढ़िया दूसरे से स्टेट्स घूम रहा हूँ, सिटी घूम रहा हूँ, तो ऐसा हो रहा था कि fuck ये तो this is like the place to be. मैं पहाड़ पे भी like हिमाचल पहुंच रहा हूँ, like this is like the place to be. This is like the place to be. बट लाइक जैसे मैं मुंबई आया, ट्रेन से मैं उतरा, एक स्टेप बाहर में जैसे लैंड किया, आई वाज लाइक फकिंग आई लव दिस शिट, आई लव दिस chaos.
What is this? I'm addicted to this chaos. Just bring me एक तो more. बॉम्बे का वेदर ऐसे परपेचुअली गर्मी पसीना, ठीक है। आई ग्रो अप इन कैलकाटा विच इज वेरी सिमिलर वेदर, ठीक है। तो परपेचुअली गर्मी पसीना, आधे लोगों को स्किन प्रॉब्लम, ठीक है। उसके ऊपर से सड़क खोदा हुआ है, कहीं से जा नहीं सकते हैं। अब वो फ्लाईओवर के ऊपर, मेट्रो के ऊपर फ्लाईओवर बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है? और वो शहर है, वो अजीब ही बन रहा है। सो Just इट्स stacking इट्स city over city. fascinating for me के वो मीम है ना, लाइक मेन विल डू एनीथिंग एक्सेप्ट थेरेपी। सो इट्स लाइक मुंबई विल डू एनीथिंग एक्सेप्ट डेवलप नवी मुंबई, यू नो, लाइक वो कुछ भी करने का, वो फ्लाईओवर बना देगा, समुंदर के ऊपर ब्रिज बना देगा, बट दे विल नॉट एक्सपैंड इनटू, यू नो, व्हाट इज द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ अ सिटी लाइक दैट। बट मेरे को मुंबई कर से एक लाइक स्पेशली जो कम्युनिटी से है, Bombay is one of the biggest powerful Ambedkarite cities, you know, like has a very Yeah. strong culture, and Baba Sahib lived there, and every year in Baba Sahib's Jayanti, like there's huge crowds in December also, there are huge crowds. So तुम्हारा कोई experience था, like were you part of that? Were you like, did you experience it like as a something that's happening around you, but you were never very deep into it? Like, what are your experiences with that growing up in Bombay, within a, community household and things of that nature? सो भाई मेरे ऐसा घर पे तो ऐसा बचपन से कभी ऐसा कल्चर था नहीं ऐसा कि रीडिंग मतलब अम्बेडकर के बारे में पढ़ने का, देन थोड़ा अपना कल्चरली अवेयर, वो सब मतलब आइडेंटिटी अवेयरनेस तो जीरो ही था ऐसा। बिकॉज मतलब आई ऑल्सो थिंक दैट कम्स फ्रॉम बिकॉज माई मॉम एंड डैड हैड एन इंटरकास्ट मैरिज, तो उन लोग का एट सम लेवल दे हैव दैट आइडिया कि वो हमारा पास्ट था और उन लोग उसको छोड़ के आ गए, तो लेट्स स्टार्ट फ्रेश, लेट्स स्टार्ट न्यू। तो एक वो है कि वो कनेक्टिविटी नहीं है उनका कि टू द इतना। सो एक वो भी था कि ब्लू मेटल के बाद ही जो लाइक मेरा बोलूंगा तो वैसा लाइक एवरी सिटी में लोगों से मिलना, थोड़ा ऐसे ऐसे लाइक स्टार्टिंग के शोज में, लाइक फर्स्ट इनिशियल शोज में, शोज के बाद ऐसे लोग आके मेरे को जय भीम बोलते थे, तो मेरे को थोड़ा सा ये होता था ऐसा कि बिकॉज मेरे को ऐसा आदत नहीं था कि सेइंग जय भीम टू एवरीवन ऐसा वैसा ये वो सब, तो मैं ऐसा थोड़ा ये हो जाता था क्योंकि बचपन से लाइक एकदम। तो अभी जाके थोड़ा थोड़ा गॉट यूज्ड टू सब लोग ऐसे। तो वही भाई अभी रीडिंग वीडिंग भी करना थोड़ा चालू किया है थोड़ा सा थोड़ा। No, तो it's a very interesting thing कि in some second generation homes, like parents का ऐसे एक impulse रहता है कि हमने जो like trauma या pain suffer किया है, like I don't want to pass it on to my child, so like we give them a clean slate, and like आप जाओ experience करो, but like you were also, that is fucked up, but that is fucked up, bro. That only that is full, yeah. yeah, because फिर जब ऐसा तो नहीं है कि समाज बदल गया है, आप Exactly. एक्सपीरियंस करोगे, एंड यू वर सेइंग दैट इन इंजीनियरिंग कॉलेज देयर वाज ऑल ऑफ दिस, सो लाइक what made you see that? You didn't grow up seeing yourself as, okay, I'm from this community and this is our legacy and this is our fight. So what happens when someone like that walks into, like, engineering colleges are like murder camps actually in this country. They're terrible, the way it's organized and all of that. So I escaped just in time. Made it. Yeah, bro. Oh, it's a Fuck. चूतिया, हाँ ब्रो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस आ तो या फुल नहीं, टीचर्स भी ऐसा होता है, स्टूडेंट्स भी ऐसा होता है, और स्टूडेंट को सिखाया जाता है दिस हेट, दिस आइडिया ऑफ लाइक रिजर्वेशन, दिस एंड दैट, और आपको वो काउंटर कल्चरल वैल्यू भी नहीं उसका मिलता है। सो दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट स्पॉट टू बी इन, लाइक you're looking for what do you call it, you're looking for resonance in the work of black comics, while there is a community mode right there in that sense. So it's fascinating like that. Speaking of that is really sad कि मुझे उस टाइम पे आसपास मुझे कुछ नहीं दिखे। like मेरे को ना recently one person asked me this question कि bro, why are you writing, मतलब what drives you to write this material that you're writing?
And मैं थोड़ा हिल गया bro. I was like, fuck, what is the answer to this complex question that this guy, like very simple question, very very simple question कि what drives you to write your material, very very simple question, but मैं ऐसा हिल गया भाई. I was also like, fuck bro, what drives me? And then I was also like thinking, and it was exactly this कि वो time पे जब मैं engineering college में था, when I was just looking out for things to relate with, तो उस टाइम पे मेरे को सब ये ब्लैक कॉमेडी इज द फादर्स्ट थिंग, अलग देश की बात है ये, तो वो देख के कनेक्टिव थोड़ा फील हुआ. तो उस टाइम पे आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अभी जो मटेरियल लिख रहा हूँ, अगर वो टाइम पे कोई, अगर वो टाइम मैं कॉलेज में होता, चिल विल कर रहा होता, अपनी कॉलेज की लाइफ जी रहा होता, अगर सब यूट्यूब पे मेरे जैसे ही कोई कॉमिक कोई का मैं मटेरियल देख लिया होता, शायद से मैं इंजीनियरिंग खत्म कर दिया होता भाई. शायद से बस एक वो एक एंकर मेरे लिए बस हो जाता कि भाई चलो अभी इंजीनियरिंग खत्म, मतलब बोलते हैं ना ऐसा अपन, बस एक हैंगिंग के लिए एक थोड़ा एक लास्ट ब्रांच वैसा. हाँ, तो वो बहुत हो जाता है ऐसा, लाइक आई फील. तो मैं तो भाई No, खुद it के makes लिए ही लिख रहा हूँ. हाँ. नहीं, it makes a big difference. मेरे को अक्सर ऐसे बहुत मैसेजेस आते हैं, like because I'm very vocal about the education system. Like as a student, I struggled in it, and as a teacher, I struggled in it, and I see like student suicides across the board and stuff. मेरे को बहुत बार मैसेज आते हैं लोगों के, like कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ. They're just hearing me say, right? But the fact कि ये जो आपके दिमाग में चल रहा है, आप किसी और के थ्रू सुन और रहे के हो, से सुनते हो, राइट. it's a very big thing in that thing. So I think the work that you're doing is very important. I also want to kind of ask you, like since you're talking about Bombay and like how it's not a city anymore, and you're obviously in love with the trains. तो मैं कैसा लग रहा है ऐसा कि Bombay model of trains is being exported. I sent you that other tweet, like train के अंदर सब overcrowded. अभी organically ये चल रहा है, across India of AC कंपार्टमेंट्स में भीड़ आ गई है बिकॉज जनरल और स्लीपर खत्म हो गया है. सो आई कॉल इट द बॉम्बे मॉडल हैज नाउ बीन एक्सपोर्टेड अक्रॉस इंडिया थ्रू रेलवेज. ऐसे हार्डकोर बम्बई का जो सारा जिंदगी ऐसे भीड़ वाला लोकल ट्रेन में घुसा है. कैसा लग रहा है तुमको आईआरसीटीसी का ये वीडियो वगैरह देख के? ऐसे लाइक योर होम इन दैट सेंस. या भाई थोड़ा गंदा तो लगता है भाई, मतलब थोड़ा सैड तो लगता है भाई, यार क्या हो रहा है भाई ये थोड़ा, बट भाई मालूम नहीं यार भाई अभी. या दिस नो इट्स the only reason I'm asking you is कि इन चीजों के ऊपर अभी सिर्फ हम मजाक करके ही बात कर सकते हैं. यू कैंट थ्योराइज. सिस्टम्स हैव कोलैप्स्ड, राइट? वो खत्म हो गया है, वो सब कुछ बिखर रहा है. सो इन दैट सेंस द ओनली थिंग लेफ्ट टू डू इज नाउ लाफ अबाउट दिस. इस पे अगर हम सोचने लगे नहीं व्हाट इज द गवर्नमेंट पॉलिसी, ऐसा क्यों है, नहीं है, वो अब वो पॉइंट ही नहीं है उसका. वो सिस्टम्स ही कुछ अलग लेवल पे चला गया है. But I just thought it would be funny to kind of get some this idea. But Bombay, how's the Bombay Metro doing? Like I haven't used it. Like it's अच्छा तो है, अच्छा मतलब एक्सपीरियंस अच्छा तो है भाई. मैं तो एक्सपीरियंस किया, मेरे को तो मस्त लगा एकदम. लाइक इधर के बिल्डिंग के मेरे फुल लाइक सब लोग अंकल लोग एकदम खुश थे भाई, एकदम मेट्रो में बैठते तो लाइक उन लोग भी फुल किया, अरे डेवलप हो गया. वो गरीब लोग में दिखता है ना, उसमें एसी है मेट्रो में और थोड़ा अंकल. हाँ, लाइफ अपग्रेड हो गया उनका. हाँ. And how do you feel that Mumbai Indians is not in the top 4 of the IPL as we speak? अरे bro, तुम्हारे IPL टीम में ऐसे कुछ गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया, ऐसे हार्दिक पांड्या आ गया, रोहित शर्मा. या ब्रो इट्स थोड़ा सा फक, या थोड़ा सीन्स आ फक, थोड़ा फैमिली के अंदर थोड़ा सा सीन चल रहा है थोड़ा अंदर, बट या वो हो जाएगा भाई. वो अभी हम लोग का हर साल का हम लोग थोड़ा स्टार्ट थोड़ा ये करता है. ऐसा शर्म नहीं आता जैसे नीता अंबानी की टीम को इतना पर्सनली लेके तुम मेरे से बात कर रहे हो? मुंबई इंडियन वाले ऐसे बोलते तो शर्म नहीं आ रहा है. नीता अंबानी, नीता आंटी का ऐसे देखा भाई, उनका इसके लिए ऐसा छोटे छोटे चीज के लिए कोई कॉल आउट करता है ना भाई, तो यार मैं ऐसा बाद में को हैंग आउट करने का मन नहीं करता है भाई. कॉल आउट सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है, बट नहीं सोचने वाली बात तो है. ये नीता अंबानी इतनी बड़ी कैपिटलिस्ट, सबका पैसा खा के बैठी है. मैं इतना इमोशनल हूँ मुंबई टीम के बारे में. शिट यार, थोड़ा सा. No, Mumbai Indians is a very interesting model because this is the only time, I think this is the first time the Ambanis got into sport. तो वो लोग टीम खरीदा, ठीक है. उनका लॉजिक ये था, सबसे महंगा वाला टीम कौन सा होगा, मुंबई का होगा, मुंबई वाला खरीदते हैं अपन, ठीक है. तो ये उनका लॉजिक था.
आफ्टर आईपीएल अब वो टीम नहीं खरीदते, अब वो लीग खरीदते, ठीक है। अब वो सीधा फुटबॉल टीम नहीं खरीदेगा, वो पूरा फुटबॉल लीग लेगा, कबड्डी टीम नहीं खरीदेगा, कबड्डी लीग लेगा। वो आईपीएल, आई फील लाइक आईपीएल ने थोड़ा उनको लाइक एक ग्राउंड रियलिटी दिया गया, लाइक यू नो यू डोंट बाय टीम्स, यू बाय लीग्स, योर अंबानी, यू नो। तो ये उनका उनका फ्रेलिटी दिखता है मेरे को इस टीम में, कि तुम लीग नहीं ले पाए, तुम्हारा दिमाग नहीं चला उस टाइम, तुम टीम लेके गए, ठीक है। और अभी तुम्हारा यही है कि वो हार्दिक पांड्या को ले आओ, जितना मर्जी पैसा वो ले लो। मेरे को बहुत मजा आया हार्दिक पांड्या को ऐसे लेके आया और सब उसको बू कर रहे हैं और वो ऐसे अपना हीरो बन रहा है। ब्रो रोहित शर्मा का जर्सी नंबर वाज बैंड वानखड़े में, उसका जर्सी नंबर वाज बैंड, या बिकॉज़ पीपल वर वेयरिंग रोहित शर्मा जर्सी नंबर एंड देन बूइंग हार्दिक पांड्या। बहुत टैलेंट है, मेरे को बहुत मजा आया। लाइक आई वाज सॉर्ट ऑफ गेटिंग इनटू द गुजरात टीम, एंड तब मेरे को अपने ऊपर लाइफ में ऐसे थोड़ा क्राइसिस हुआ कि लाइक यार मैं क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी के साथ। लाइक मैं अब अहमदाबाद की टीम को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। लाइक अहमदाबाद में 5 साल रहा हूँ इन माय एमबीए एंड माय पीएचडी, एंड लाइक छी यार ये नहीं कर सकता। एंड they were playing good cricket. Hardik Pandya was showing maturity, Shubman Gill and Rashid, and मेरे को लगा यार ये अच्छा टीम है, अब क्या करे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हार्दिक पांड्या को उठा के मुंबई ले गए। And I was like, this is beautiful. Now I don't like this team. And this guy is gonna get booed. तो मेरे को ऐसे बहुत मजा आया। वैसे आईपीएल मतलब पहले मेरा एक फेज था आईपीएल के साथ, लाइक आई यूज्ड टू नॉट कंसिडर इट क्रिकेट। नाउ आई ओनली कंसिडर आईपीएल क्रिकेट। अब नेशनल क्रिकेट मेरे को फेक लगता है, क्योंकि आईपीएल में सब खेलने आ जाते हैं। जब आप कोई टूर करो, इंडिया टूर ऑफ श्रीलंका, आधे प्लेयर नहीं अवेलेबल नहीं है, इंजर्ड नहीं है, सिर्फ वर्ल्ड कप में टीम आता है, राइट। तो उससे अच्छा आईपीएल में सब लोग आते हैं, धोनी भी आता है, सब so I'm kind of on board with that. Anyways, before we kind of close out, tell the audience where they can get their tickets for your show and what they can expect. Many things are in pipeline right now for Blue Material. So first is this 28th show in Mumbai, which is happening at Habitat, 8 p.m. Full Avengers Assemble. So be there. And the next thing in pipeline is the rap comedy show. So the core idea being to take the Jayanti experience and tour it in every city. The rap comedy, log आएंगे, comedy सुनो, बढ़िया नाचो गाओ पियो and घर पे जाओ. Like that's the whole. Basically, street masti. Yes. पूरी वैसे. Like हम लोग भाई Blue Material जब स्टार्ट किया था, तो हम लोग को भी ना स्टार्ट में हम लोग बात करते थे कि what exactly this space is. तो हम लोग को भी ऐसा स्टार्टिंग में ऐसा रियलाइज होता था, oh this is like बस एक मीटिंग एक्सक्यूज फॉर पीपल फ्रॉम कम्युनिटी. लाइक हम लोग दिल्ली में करते थे, दिल्ली बैंगलोर शो करते थे, तो वहां पे लिटरली लोग ऐसे ऑडियंस एक दूसरे को पहचान रहा है, अरे हाय, लाइक उन लोग शायद से ऑनलाइन बात करे, ऑनलाइन फ्रेंड्स होंगे, क्योंकि बहुत बार लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का फ्रेंडशिप इस पे बना था कि सब मतलब मालूम नहीं, एक शायद से एक कम्युनिटी का कलेक्टिव आइडेंटिटी क्राइसिस चालू था या क्या, मालूम नहीं, बट एवरीवन वाज कनेक्टिंग विद ईच अदर. वही तो ऑनलाइन सब लोग फ्रेंड्स थे, सब लोग ऑफलाइन शायद से फर्स्ट टाइम हमारे शो में मिल रहे थे. सो इट वाज वेरी मस्त टू वॉच. No, I know Blue Material had a big impact on it. Like when it first came, there was some amount of skepticism also within certain circles. Ke what is a Dalit comedian? क्या होता है? You know, what is ये Ambedkarite comedy क्या होता है? So there was some amount of skepticism also, but I think by and large, you know, like you rightly said, like it gives people like if there was a Blue Material show in my city, I would want to. I don't go for comedy shows, but like if it was a show and like now I know you all, it's different. But like अगर मैं जानता भी नहीं, I would go for it because it feels like even if the and you guys are good, but I'm saying even if the show is not good, it's a place you go to because it's our place. Exactly, हम लोग वही कि भाई सब लोग अपने एक जो भी इमेजिनरी घोड़ा है उससे नीचे आ जाओ, एंड सब लोग that was like a humbling moment कि guys अपन बस सब लोग के लिए hanging out spot है. क्योंकि देखो भाई, ये फर्स्ट वेव जो आ रहा था, सब बढ़िया न्यूज़पेपर में फोटो वीटो आ रहा है, तो एक वो ना हो कि सब लोग एक हवे में चढ़ जाए सबके सब, तो एक वो सबके लिए कलेक्टिव हम्बलिंग मोमेंट था कि अपन बस एक हैंग आउट स्पॉट है गाइस. अपने को भी फन आता है करने को, बट आ रहे लोग देखने को, लेट्स बी ग्रेटफुल ऑफ दैट एंड बस आगे ये करते रहे. I'm very you're like underplaying it, but I really like this. Like apart from the hangout spot, we also need our icons, we also need our artists, we also need our
you know our names के like ये you know वो जो एक fandom है कि like you know मैं Blue Material के show पे गया you know and like Yes, that yes. photo and that thing, right? So I think that's a very powerful role that you guys are doing, and anything I can do to support it, I'm always there for it. And I wish you guys all the best for the show. Hope you guys like sell out and like people are fighting outside the venue to get in, and they have to call the police and they listen to your show and they're like, अरे हम भी आएंगे यहाँ पर और full एकदम मतलब सब भाईचारा हो जाए, ऐसे संगी भी आ जाए, संगी भी कन्वर्ट हो जाए, सब गले मिल जाए, लड्डू बांट रहे, you know that kind of a thing, Yeah, all बन जाए full एकदम. So I hope all that success to you all. Thank you for coming on the show, and thank you for having me, bhai. Thank you for having me. Yeah. yeah, I'm sorry, I'm not very talented at interviewing. Like Anurag does a great job with it. Like मैं बस अपना ही बोलता रहता हूँ, interrupt करता हूँ. And thank you for tolerating me. And No, bhai, fun. All super fun, bhai. Super fun, bhai. Full pleasure, bhai. Full pleasure. great. All the best for the show. Right. If you like this episode, please consider following me on Patreon, where I do a second show, a small half an hour on the weekly news and things of that nature, the absurdities and the surreal stuff which is happening around. If you've had enough of me and if you don't want to listen to me that much, I completely understand. I can't tolerate myself. In that case, I would request you to go to buy me a coffee and please like support me, or you can just keep listening to my free shit. I don't mind. Thank you very much. Jai Bhim. See you all.